Hello students, so welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the first MCQ of indefinite integration. In previous last video lecture, we just started the topic indefinite integration with the total theoretical part, that is we called synopsis of indefinite integration, right? So integral calculus, this is the most important section of MST CET. In there are three topics: indefinite integration, definite integration and applications of definite integration. So approximately 9 to 10 MCQ होते, 8, 9, 10 MCQs means approximately 16, 18 or 20 marks इस section पे है, that is integral calculus. So today I am going to start the first MCQ of the topic indefinite integration. Okay, so let's see the first MCQ. This is the first and second MCQ. So we have to solve the first MCQ, that is integration. यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ sin raised to 6x plus cos raised to 6x divided by sin square x into cos square x. So this is not a common example, इसको हम common substitution नहीं तो by parts नहीं तो by partial fraction से नहीं सॉल्व करेंगे. ये completely logic based example है. So numerator में a cube plus b cube identity यूज करेंगे. a cube plus b cube. So what is a cube plus b cube? a plus b in bracket a square minus ab plus b square. So this is identity a cube plus b cube. So here sin raised to 6 को हम sin square whole cube करेंगे, cos raised to 6 को cos square whole cube करेंगे. So this becomes integration I is equal to a plus b, a plus sin square plus cos square, sin square plus cos square in other bracket sin raised to 4x minus sin square x into cos square x plus cos raised to 4x divided by sin square x into cos square x. So it's easy to write S for sin and C for cosine, that is cos. हमें सब ये रफ में सॉल्व करना है. एग्जाम में सिर्फ आपको एग्जाम के आंसर को क्लिक करना है, टिक करना है by using the mouse, right? So this is the calculation in other rough pages. So आप किसी भी शॉर्टकट से लिख सकते हैं S for sin and C for cosine. Sin square plus cos square is 1. So it is a yes sin raised to 4 plus cos raised to 4. यहाँ पर भी मैं एक आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ. ये sin raised to 4 है, इसको s स्क्वायर होल स्क्वायर करता हूँ और cos raised to 4 को s स्क्वायर c स्क्वायर होल स्क्वायर. a square plus b square identity. a square plus b square is what? a plus b whole square minus 2ab. a square plus b square is what? a plus b whole square minus 2ab. So this becomes I is equal to, this is a plus b whole square sin square plus cos square whole square minus 2 sin square x into cos square x divided by sin square x into cos square x dx. So जैसे ये 1 था, ये भी 1 है, 1 square is 1, so it is 1 minus 2 sin square x into cos square x divided by sin square x into cos square x. अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. जो I is equal to 1 upon sin square x into cos square x dx minus this will be cancel only 2 dx. So for this one we can write sin square x plus cos square x, this identity. Instead of 1 we can write sin square x plus cos square x. So this after separate dividing, here sin square cancel, 1 by cos square x is sec square x plus cos square cancel, 1 by sin square x is cosec square x dx minus 2 का इंटीग्रेशन 2x plus c, sec square x का इंटीग्रेशन tan x, cosec square x का minus cot x minus 2x plus c. This is आंसर. So tan x minus cot x minus 3x कहाँ से आया? a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो तो 2 तो नहीं आ सकता, माइनस 2ab। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बिकम्स माइनस 3ab। ये बीच का एक टर्म यहाँ पर है, इट इज 3ab, सो दैट्स वाई इट इज बिकम्स 3। सो 3x प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab इज माइनस 3ab, सो दैट्स वाई इट इज दिस। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट MCQ। 1 का आंसर कितना है, ए है। इज इट क्लियर? सो रेगुलर मेथड नहीं, यहाँ पर जजमेंट है, उसी जजमेंट से आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स सी नंबर सेकंड एग्जांपल। cos raised to 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सेकंड MCQ भी वही टेक्निक का है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, बाय पार्ट्स फेल्योर है, तो यहाँ पर इसको हम जजमेंट से सॉल्व करेंगे। cos raised to 4x का मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दैट इज cos 4x मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। देखो सेकंड MCQ, I इज इक्वल टू cos 4x divided by sin square x. So cos 4x means what? 1 minus 2 sin square 2x divided by sin square x. फॉर्मूला मल्टीपल एंगल का, जैसे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus 2 sin square थीटा बाय 2। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square थीटा। cos 4 थीटा का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square 2 थीटा। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स, सेपरेट डिवाइड किया, कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? साइन 2x मीन्स व्हाट, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर है, साइन 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ये 2 एज इट इज, ये 2 इंटू है, सो दिस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस 2 4 8, ये cos स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स इट इज नॉट इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल नहीं है। सो cos स्क्वायर एक्स जैसे cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स का cos 3x बाय 3 मत करो, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज ओनली फॉर अल्जेब्रिक नॉट फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक। इज इट क्लियर? सो cos स्क्वायर एक्स इज नॉट इंटीग्रेबल, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू फॉर्मूला, दैट इज व्हाट 1 प्लस cos 2x बाय 2, दिस इज cos स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है, 2 4 8 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 एज इट इज, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 प्लस सी 2 2 4। देखो ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर माइनस कॉट एक्स माइनस 4x माइनस 2 sin 2x प्लस सी। सो दिस इज अ answer of second, that is what B. Is it clear? Means your solution of integration absolutely depends on the option. So पहले option read करो, उससे डिसाइड होता है कि कौन सी मेथड आपको अप्लाई करना है। ओके, सो आफ्टर सेकंड स्टार्ट नाउ थर्ड एंड फोर्थ, इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ लेंगे। सो 20 एग्जाम्पल हमारा टारगेट है। आई होप यू क्लियर द फॉर्मूले ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, rules of integrations, methods of integrations. So देखो नंबर थर्ड क्या है, MCQ नंबर थर्ड, I इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4 raised to x plus 1 माइनस 7 raised to x minus 1 डिवाइडेड बाय 28 raised to x। अब ये 4 7 28 होता है, यहाँ पर 4 raised to x इंटू 4, 28 raised to x को 4 raised to x इंटू 7 raised to x करेंगे dx माइनस 7 raised to x इंटू 7 raised to minus 1, 7 raised to x इंटू 7 raised to minus 1 डिवाइडेड बाय 4 raised to x इंटू 7 raised to x। 28 मीन्स व्हाट, 4 7 7 raised to x इंटू 4 raised to x, ये टर्म कैंसल, ये भी टर्म कैंसल, ये 4 आउटसाइड, 7 raised to minus x ऊपर जाएगा,
ये 1/7 आउटसाइड, 7 to the power -1 मीन्स 1/7, 4 raised to -x dx. 7 raised to -x का इंटीग्रेशन 7 raised to -x अपॉन -1 into log 7. So ये -1 what? This is a coefficient of x. This is 1/7, 4 raised to -x का इंटीग्रेशन 4 raised to -x into -1 into log 4. So this -1 is the coefficient of x. So ये पॉजिटिव बन जाएंगे प्लस 1/7, 1/log 4 into 4 to the -x. ये -4 into 1 upon log 7 into 7 raised to -x plus c. ये उसका आंसर। देखो एग्जाम्पल में है आंसर, यस ये ऑप्शन है। देखो ऑप्शन ये क्या है, 1/7 into log 4, 4 to the power -x, 4 upon log 7 to the base e. This to the base e is obviously it is natural log, so it is obviously base e होता है। सो देखो थर्ड इज कंप्लीटेड, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द MCQ नंबर 4। अभी देखो ये सब एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में ऐसे कोई भी एग्जाम्पल नहीं थे, ये कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक में के न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटीग्रेशन आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द MCQ ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज MCQ में क्या होता है, क्वेश्चन टैकल क्या होता है, कुछ तो अलग जजमेंट होती है वहाँ पर, डायरेक्ट थिंकिंग नहीं होती, कुछ वो मीन्स क्या बोलते हैं उसको कि अलग थिंकिंग करना पड़ता है, अलग सोच में रखना पड़ता है, तभी MCQ सॉल्व होते हैं। नंबर 4 प्रैक्टिस करो, सब परफेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 + x, ये एग्जाम्पल JEE को एग्जाम को आया था, इट इज़ नॉट अ कॉमन एग्जाम्पल। आप खुद ट्राई करके देखो, डोंट सब्स्टिट्यूट एनीथिंग। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + x है तो √1 + x होल स्क्वायर करेंगे, √1 + x होल स्क्वायर दैट इज सेम। यहाँ से √x कॉमन निकालेंगे, √1 + x डिवाइडेड बाय √x प्लस √1 + x है। 2-3 स्टेप का एग्जाम्पल, बट थिंकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो हमारे मेथड से सब्स्टिट्यूशन के, जो बाय पार्ट्स के, जो पार्शियल फ्रैक्शन के, किसी भी मेथड में एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करना है तो डिफरेंट लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। सो टेकिंग √1 + x कॉमन इन ब्रैकेट √1 + x प्लस √x डिवाइडेड बाय √x प्लस √1 + x dx। सो दिस फैक्टर कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल, रेस्ट टू हाफ करो, 1 + x रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2 मीन्स व्हाट क्या होता है, वो मल्टीप्लाई 2/3 होता है। सो देखो ये ऑप्शन 4th नंबर का क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 2/3 into 1 + x रेस्ट टू 3/2, x + 1 1 + x टू बी सेम। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ MCQ नंबर 4, राइट। नाउ यहाँ पर 5th and 6th लेंगे। अभी 5th में एग्जाम्पल और 6th एग्जाम्पल भी ऐसे कॉमन एग्जाम्पल नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल, जितने हम 250 MCQ लेने वाले हैं, 250 MCQ हमारा टारगेट है, डेली 20। अगर ये वर्कशीट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी PDF की लिंक दी है। अब इसका अगर आपको प्रिंट निकालना है, आपके पास वर्कशीट रखना है तो डिस्क्रिप्शन, इस यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन देखो, वहाँ पर इस वर्कशीट की PDF मैंने दी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में है। सो लेट्स सी द MCQ नंबर, लेट्स सी द MCQ नंबर 5। सो स्मॉल करेक्शन इज देयर इन दैट न्यूमरेटर, राइट देयर 2x नॉट x, देयर इज ओनली 2x करो, 2x + 1 होल स्क्वायर, 2 की जगह पर 2x करो, मिसिंग इज देयर x, सो इट इज सिंपल थिंकिंग, +1 करो -1 करो, 2x + 1 होल स्क्वायर, 2x + 1 होल स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड इमीडिएटली, दिस टर्म कैंसल। सो हियर इज 1/2x + 1 dx माइनस 2x + 1 रेस्ट टू -2 dx। ये टर्म मैंने ऊपर ली, निगेटिव पावर बन गया।
ये जो स्पीड है, ये जो एक्यूरेसी है, ये जो थिंकिंग है, इट इज़ एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका लॉजिक उतना डेवलप हो जाएगा, आपका रीजनिंग उतना डेवलप हो जाएगा। ये लीनियर है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ 2x + 1, x का कोएफिशिएंट अपॉन टू, यहाँ पर अपॉन 2 लिखो, मीन्स 1/2, 2x + 1 + 1 करो, 2x + 1 raised to -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इज -1 प्लस। सिर्फ आपको यह ए ऑप्शन चेक करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2x + 1 + c। in negative power becomes what, positive। this is the answer। so फिफ्थ का आंसर क्या है, देखो ए है। अब x का कोएफिशिएंट 2 लिखना, यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर 2 लिखना है। write the coefficient of x in the denominator, write the coefficient of x in the denominator। so this is the fundamental theory of integration, जो मैंने आपको बताया था। if f of x का इंटीग्रेशन अगर g of x है तो f of a plus x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, f of ax plus b का g of ax plus b upon a। so look at the example number MCQ number 6 में क्या दिया है उन्होंने, 1/x + x raised to 5 dx is f of x plus c। this is given and we have to find x raised to 4 divided by x plus x raised to 5 dx। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे नीचे से, 1 + x raised to 4, ऊपर x raised to 4 + 1 करो, -1 करो। दिस इज अ गिवन पार्ट, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। x raised to 4 एज इट इज रखा मैंने, टेकिंग x फ्रॉम द डिनोमिनेटर कॉमन, यहाँ पर 1, यहाँ पर x raised to 4, सेपरेट डिवाइड करो dx, ये -1, इसको हम x + x raised to 5 फिर से लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज इट इज गिवन। इसका इंटीग्रेशन f of x + c है। अब आप कहेंगे कि ये f of x प्लस ये तो माइनस इंटू प्लस माइनस c बन जाएगा, -c रखो प्लस c लिखो, इट इज़ टू बी सेम, इट इज़ इंटीग्रल कांस्टेंट, ये सेम ही होता है। ये फैक्टर कैंसिल, 1/x का इंटीग्रेशन log x। सो दिस इज आंसर। बट लेकिन ऑप्शन में कभी भी +c रहेगा, -c नहीं रहेगा, +2c नहीं रहेगा, +3c भी नहीं रहेगा, ओनली ऑलवेज व्हाट, +c। इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रल कांस्टेंट। सो ऑप्शन ऑफ 6 इज व्हाट, ए। सो जजमेंट क्या है, ये गिवन है। इसके चारों ऑप्शन एक बार आप रीड करो, चारों ऑप्शन में क्या है, log x log x log x। 3 ऑप्शन में तो log x है, f of x - log x है, log x - f of x है, f of x + log x है, मीन्स log x आना चाहिए आंसर में। log x कब आएगा, जब वहाँ पर 1/x की टर्म आएंगी। सो ये जो थिंकिंग है साइमल्टेनियस वो प्रोसेस में होना चाहिए, तब आपका इंटीग्रेशन करेक्ट आएगा। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 and 8। MCQ नंबर 7 and MCQ नंबर 8। देखो क्या है MCQ 7 and 8। 7 I is equal to e to the power 3 log x into x raised to +1 raised to -1 dx। ये ऊपर जाएगा, x³ हो जाएगा, e to the power log एलिमिनेट x³, नेगेटिव पावर 1 है, नीचे आएगा x raised to 4 + 1 dx। ये पुट करो t, सब्स्टिट्यूशन है, इसका डेरिवेटिव 4x³ + 0 dx इज इक्वल टू dt। ये 4 राइट साइड में ट्रांसफर करो, 1/4 बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट 1/4 dt, ये 1/4 dt। ये t पुट किया था डिनोमिनेटर में, सो 1/t का इंटीग्रेशन log t एंड t मीन्स व्हाट, x raised to 4 + 1। इतना स्पीड में आना चाहिए। 1/4 log ऑफ x raised to 4 + 1 ऑप्शन है। 7 का ऑप्शन क्या है, ये राइट।
सो ये पहले 3 ऊपर लिया, एक्स क्यूब होगा e रेस टू लॉग, e टू द पावर लॉग एब्सोल्युटली एलिमिनेट बिकॉज दैट लॉग इज नेचुरल लॉगरिथम, बेस e होता है, सो एक्स क्यूब ओनली। अब इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है एडजस्टमेंट करके, सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, ये पुट किया t, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब है, 4 तो कांस्टेंट राइट साइड में जा सकता है, एक्स क्यूब डी एक जो टर्म है उसकी जगह पे dt रखेंगे 1/4 dt, दिस विल बी आंसर। नाउ 8 नंबर। अब 8 में क्या है देखो, dx डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये dx एक्चुअल राइट साइड में लिखो, तो साइड में लिखो, वहाँ पर 1 है। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर करो माइनस एक्स स्क्वायर करो, प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टर कैंसिल 1/x dx, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये माइनस साइन एज इट इज। अब क्या इसका इंटीग्रेशन log x है, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अगर डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ f ऑफ x प्लस c, बट 2x चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 इज अ कांस्टेंट, सो log x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, इसका भी ऑप्शन कितना आया, यही आया 7 8 बैक टू बैक, ये ऑप्शन 6 का भी ये था। ओके, नाउ 9 एंड 10, ठीक है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ solving the MCQs of integration, indefinite integration. For more videos of regarding the MSTCET indefinite integration, subscribe this YouTube channel Math Mentor, logo is this. So आपको बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक के, इस MCQs के सब के आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको इस चैनल की सब्सक्राइब करना है, मैथ मेंटर। सो अब लाओ 9 नंबर देखो, 9 एंड 10, ये इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हर MCQ में एक्सप्लेन करूंगा, 250 MCQs आई विल एक्सप्लेन, और 250 ये MCQ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इतनी MCQ कोई भी प्रैक्टिस करके नहीं लेता। मैं 250 MCQ आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, और वो भी सब एग्जाम्पल चैलेंजिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग के हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के हैं, और इतने भी किए तो आपका ये टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ देखो यहाँ पर क्या है, हर एग्जाम्पल अलग है, पिछले एग्जाम्पल का इस एग्जाम्पल का कोई भी रिलेशन नहीं, सिर्फ रिलेशन टॉपिक इंटीग्रेशन है। ओके, अभी देखो उसके इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर उसने दिया है k इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स हमें ये पुट करना, ये तो फिक्स है, सो पुट दिस इज इक्वल टू t, बिकॉज 9 एग्जाम्पल का इंटीग्रेशन राइट साइड में दिया है k टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, हमें सिर्फ k निकालना है, व्हाट इज दैट कांस्टेंट टर्म, मीन्स ऑब्वियसली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस t, cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू साइन x माइनस साइन x, साइन स्क्वायर x का 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू dt बाई dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x, साइन x इंटू कॉस x कॉमन निकालो, 2 साइन x इंटू कॉस x कॉमन निकालेंगे, इन ब्रैकेट b माइनस a इज इक्वल टू dt बाई dx। ये जो टर्म है राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, साइन x कॉस x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी माइनस ए डी टी, और ये जो न्यूमरेटर है इट इज 1/2 इंटू बी माइनस ए डी टी अपॉन टी, ये टी पुट किया था मैंने, ये जो ऊपर की टर्म है ये आ गए, सो यही के है लॉग ऑफ टी, सो टी इज दिस एंड के इज दिस, 1/2 इंटू बी माइनस ए, 1/2 इंटू बी माइनस ए, सो इसका आंसर कितना आया, ये ऑप्शन 9 का आंसर कितना है, ये। ओके,
सो देखो नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 नाउ। अब 10 एमसीक्यू देखेंगे। ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू ई रेस टू एक्स, बी इंटू सी रेस टू ई रेस टू एक्स। सो देखो पहले ऑप्शन रीड करना है। जैसे आप क्वेश्चन रीड करेंगे उसके बाद ऑप्शन रीड करना है। ऑप्शन से आपको एक आइडिया आएगी ये एमसीक्यू किस एंगल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सब लॉग ऑफ सब टर्म्स है, मीन्स हमें यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरी अप्लाई करेंगे पड़ेंगे जो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर है। सो यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन लेंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर। सो बी अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस सी ए रेस टू एक्स, ये ऊपर जाएगा ए इंटू ई रेस टू माइनस ए को बाहर लेंगे हम, कांस्टेंट टर्म है वो, बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी, बी सी है सब तरफ बी प्लस सी है तो ये पुट करना पड़ेगा हमें टी। अगर हम इसको टी पुट करेंगे तो बी एज इट इज ई रेस टू माइनस एक्स का रेट ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो माइनस बी राइट साइड में ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी डी टी। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट माइनस वन बाई बी डी टी, वन बाई टी। ये जो नोमरेटर है इसकी जगह पर ये रख दिया मैंने माइनस वन बाई बी, ये पहले ये एज इट इज रखा, ये वन बाई टी डी टी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी। देखो ये है उसका जजमेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये टॉपिक में यही आपको समझाना है। टी इज दिस, टी इज व्हाट, बी ई रेस टू एक्स, बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। सो दिस इज आंसर व्हाट, माइनस ए बाई बी log of b plus c into e raised to x divided by e raised to x plus c। माइनस ए बाई बी कहीं पर भी नहीं है, माइनस ए बाई बी नहीं है तो क्या है, इसको निगेटिव को पॉजिटिव करो, b बाई ए करो, b बाई ए लॉग ऑफ ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, b प्लस सी इंटू ई रेस टू एक्स, सी इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर भी ऑप्शन ए है लेकिन न्यूमरेटर में बाय मिस्टेक वहाँ पर सिर्फ ई हुआ है। सो एक्चुअली दैट इज व्हाट ई रेस टू एक्स है। सो बी बाय लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन बी प्लस सी इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी, ऑप्शन क्या है ए। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको निकालना है कॉमन, ये विद इन 1 मिनट करना है, इतना सोचने के लिए बहुत कम टाइम होता है। सो व्हाट इज, हाउ टू स्टार्ट द सोल्यूशन, कहाँ से स्टार्ट करना है। सो अगर आप रैंडमली सोचोगे इसको कि ये पुट करेंगे तो वो आएगा, ये पुट करेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं। इसको इमीडिएटली आपको 2-4 सेकंड में उतना थिंक करना है कि क्या करना है। सो योर सोल्यूशन, योर इंटीग्रेशन इज एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस ऑफ दैट एमसीक्यू। इज इट क्लियर। सो ऐसे एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं एमएसटी सीईटी। एमएसटी सीईटी इज व्हाट, इट इज टोटल बेस्ड ऑन द बोर्ड पैटर्न, बोर्ड पैटर्न पे बेस है लेकिन क्वेश्चन ट्विस्टेड है, कॉमन थिंकिंग नहीं है, ऐसा सीधा सोच नहीं सकते आप, उसको टेढ़ा सोच के उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो टेढ़ा सोचना शुरू करो तभी आपका आंसर आएगा। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 10 MCQs of this worksheet. Now next 10 MCQs one by one. So okay, so I'll take one pause. Now let's see the MCQ number 11 to 20. अभी 11 to 20 हम करेंगे. So देखो MCQ number 11. So 1 upon x raised to n minus x. I 1 upon x raised to n minus x. देखो कोई एग्जाम्पल का कैसे सॉल्व करना, कुछ भी ऐसा इंस्टेंट जजमेंट नहीं आता। मैंने अभी बताया कि अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो हमको उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो वैसे अगर सीधी सोच से इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो सकता तो हमको सोच टेढ़ी करनी पड़ेगी। टेढ़ी सोच मीन्स क्या है, कुछ अलग सोच करना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन का एमसीक्यू आएगा। ओके, तो ये कौन से भी मेथड के एग्जाम्पल नहीं, बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करते जाना है और आंसर निकालना है। देखो x रेज टू n कॉमन लेंगे, 1 माइनस x अपॉन x रेज टू n। बहुत ही सिस्टमैटिक बता रहा हूँ मैं आपको।
ये ऊपर जाएगा एक्स रेस टू माइनस एन, 1 माइनस एक्स रेस टू 1 एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू 1 माइनस एन, इसको टी पुट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स रेस टू 1 माइनस एन का 1 माइनस एन इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कट, माइनस 1 प्लस एन मीन्स एन माइनस 1 होगा, ये एन माइनस 1 राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1 डी टी, ये डी एक्स लेफ्ट में, एक्स टू द पावर माइनस एन, यही टर्म न्यूमरेटर में है। सो ये न्यूमरेटर की जगह पर ये रखो 1 अपॉन एन माइनस 1 डी टी, 1 अपॉन टी, ये टी पुट किया था, ये न्यूमरेटर बिकम्स 1 अपॉन एन माइनस 1 डी टी। सो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, t मीन्स व्हाट, दिस 1 माइनस एक्स रेस टू 1 माइनस एन प्लस सी। अभी ये करेक्ट नहीं हुआ तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको 1 माइनस एन को नीचे ले लो, एन माइनस 1 हो जाएगा, एक स्टेप उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आंसर तो करेक्ट है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू, उसका निगेटिव साइन एन माइनस 1 प्लस सी, 1 अपॉन एन माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस सी, ये उसका आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 11, दैट ऑप्शन इज व्हाट, ए। इज इट क्लियर? सो थोड़ा डिफरेंट सोचें, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको कुछ सब्सटीट्यूशन भी नहीं हो सकता, तो ये कॉमन लो। देखो ये कैसे सोचना है, ये सोच कैसे रखना है, देखो चारों भी ऑप्शन में देखो, कुछ ऑप्शन में एक्स रेस टू एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 है, तो ये कॉमन निकालना, यही उसका सोल्यूशन है। ओके, नंबर 12, इसके बाद 12 नंबर। अभी 12 नंबर एग्जाम्पल, ये JEE का एग्जाम्पल है, बहुत बार आया है, ये आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, टेक्स्ट बुक में इसको MCQ की लिस्ट में एग्जाम्पल है शायद। MCQ नंबर 12 आफ्टर 11 नंबर 12। देखो 12 नंबर क्या है, log 3x डिवाइडेड बाय x इंटू log 9x dx। log 3x को log 3 प्लस log x डिवाइडेड बाय x इंटू log 9 को log 3 स्क्वायर प्लस log x dx। log 9 प्लस log x मीन्स log 3 स्क्वायर मीन्स 2 log 3। इसको हम एक अलग नोटेशन देंगे, a कांस्टेंट टर्म है, a प्लस log x डिवाइडेड बाय x इंटू 2a प्लस log x dx। गॉट इट? log x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, a प्लस टी टू a प्लस टी डी टी, ये 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको हम डी टी रख दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पर क्या पुट किया है, log x इज इक्वल टू टी पुट किया है। ये जो log 3 एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी जगह पर सिर्फ मैंने ये रख दिया, log 3 भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ी छोटी टर्म दिखने के लिए मैंने उसको a नाम दिया, जस्ट सॉल्यूशन तक बस। a प्लस टी अपॉन 2a प्लस टी, सो इसको 2a करेंगे और ये माइनस a करेंगे, सेपरेट डिवाइड करने में यहाँ पर 1 बन जाएगा डी टी, माइनस a अपॉन 2a प्लस टी डी टी, 1 का इंटीग्रेशन t, ये आउटसाइड है, 2a प्लस टी का log ऑफ 2a प्लस टी, 2a का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव है, 2a प्लस टी प्लस सी, t मीन्स व्हाट, log x, a मीन्स व्हाट, log 3 इंटू log 3 को ब्रैकेट करो इंटू log ऑफ 2a मीन्स log 9x प्लस सी। एक log 9x कहाँ से आया, 2a प्लस टी मीन्स log 9x है। सो दिस इज आंसर, log x माइनस log 3
into log of log 9x। ऑप्शन क्या है इसका? इसका ऑप्शन है बी। सो 12 का आंसर क्या है? बी। ओके, सो ये कॉमन एग्जाम्पल है। मैं रिपीट हर एग्जाम्पल की बात यही बोलूँगा कि ये टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नहीं है। इज इट क्लियर? हर एग्जाम्पल में इसमें आपको 10 एग्जाम्पल भी सिंपल लेवल के नहीं दिखेंगे। 10 एग्जाम्पल में हर एग्जाम्पल आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। 250 MCQ में अलग अलग सीखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपका डेफिनेटली बहुत परफेक्ट होने वाला है। नाउ 13 देखो, 13 MCQs क्या है? 5 tan x, 5 sin x डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? tan x sin x बाय cos x माइनस 2dx। राइट साइड में क्या दिया है? x प्लस a इंटू लॉग ऑफ समथिंग दिस प्लस c। cos कैंसिल करेंगे, 5 sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस 2 cos x dx। अभी ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या है? a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय c cos x प्लस d sin x। ये फॉर्म का एग्जाम्पल है और इसका हर एग्जाम्पल का आंसर क्या होता है? a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ये आंसर हर एग्जाम्पल का यही आंसर होता है, x प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बट ये और b कैसे फाइंड करना, इसकी भी एक शॉर्टकट है डायरेक्ट। दैट शॉर्टकट इज व्हाट? ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू x। b फाइंड करने की भी एक शॉर्टकट है, ad माइनस bc डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। अब देखो, ये शॉर्टकट से सॉल्व करना है तो यहाँ पर रिस्क भी होती है। शॉर्टकट की एक रिस्क क्या होती है कि वो वही फॉर्म का होना चाहिए। वही फॉर्म का मीन्स क्या है? यहाँ पर cos x प्लस sin x, a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय c cos x प्लस d sin x, वही फॉर्म में एग्जाम्पल होना चाहिए। ये भी निकालने की ये शॉर्टकट है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ए इज व्हाट? ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अगर आपको शॉर्टकट पे कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आंसर बहुत सिंपल आ जाएगा। अगर शॉर्टकट पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो रेगुलर मेथड अप्लाई करो। व्हाट इज दैट रेगुलर मेथड? put numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator, and after this by comparing the coefficient of x, sin x and cos x, you will get the value of a and b. This is the regular procedure. But मैंने रेगुलर प्रोसीजर बहुत सारे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिए, बट ये एग्जाम्पल मैं आपको शॉर्टकट से सॉल्व करके दूंगा। बट एक्चुअल एग्जाम्पल अलग था, 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2 था। ये तो डायरेक्ट लॉजिक से तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसके राइट साइड गिवन है, आंसर गिवन है। आंसर इज व्हाट? समथिंग x, व्हाट x प्लस a इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स इसको a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x के फॉर्म में लाना है। तो tan को sin बाय cos, tan को sin बाय cos किया, शिफ्टिंग किया, ये उसका आंसर। a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। So a and c are the coefficient of cos and b and d are the coefficient of sin. So ये सबसे बड़ी रिस्क है। AC are the coefficient of cos and BD are the coefficient of sin. तो इसका आंसर क्या है? देखो AC 0, BD 5, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 X, AD माइनस BC, AD 0, BC माइनस इंटू माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस C। 5 बाय 5 कैंसिल, 1x, 10 बाय 5 इज 2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका क्या है? ये उसका डिनोमिनेटर है। ओके, सो ए का आंसर 1 है और
नहीं, ए का तो यहाँ पर x है तो ये तो गिवन है, ये ए का आंसर कितना है, आंसर में 2 है। सो ऑप्शन कितना बनेगा, 2 बनेगा, बी बनेगा। सो अपना आंसर क्या है, यहाँ पर ये दिया है। सो ये इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 2। ये शॉर्टकट आप कॉपी करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। ओके, इसका और एक फॉर्म था, ये e रेज़ टू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी e रेज़ टू एक्स प्लस डी। इसका भी आंसर यही रहता है, ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। शॉर्टकट क्यों है ये, बिकॉज ये बी इज अल्जेब्रिक टर्म है, ये अल्जेब्रिक टर्म है तो अल्जेब्रिक में शॉर्टकट पॉसिबल है। बट ये बाकी जो कैलकुलस है, इंटीग्रेशन में शॉर्टकट कम है, बहुत कम है, नहीं, इट इज अप्रोक्सीमेटेड नहीं जैसे है। तो ये भी कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन द अलजेब्रा, ये शिफ्टिंग कैलकुलेशन उसको शॉर्टकट बन सकती है। यहाँ पर भी क्या है, बी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी सी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी बी बाई डी एक्स अपॉन यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जैसे यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो यहाँ पर सी डी है, ये सेकेंड शॉर्टकट। ये एग्जाम्पल का आंसर 2 आया, ये उसकी प्रोसीजर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 13। ओके, 11, 12 एंड 13 और नाउ 14। ये भी शॉर्टकट रखो, इसका भी आंसर वही है, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बट ए एंड बी फाइंड करने का टेक्निक, बी बाई डी। सो बी एंड डी आर द कॉन्स्टेंट, ए डी माइनस बी सी, ए एंड सी आर द कोएफिशिएंट ऑफ e raised to x, that is also constant but coefficient है। okay, divided by cd what, c into d। okay, so now देखो 13 हो गया, 14 एक बाकी है अपना इसका, यही पेज का एक एग्जांपल। 11, 12 हुआ, 13 और 13 के बाद 14 एक बाकी है। देखो 14 एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 2 tan x इंटू sec x प्लस 2 tan स्क्वायर x, tan x इंटू tan स्क्वायर x। तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर आना चाहिए। देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स करेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी। ये प्लस 2 एज इट इज, ये प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये अंडर रूट एज इट इज, ये dx भी एज इट इज, एवरीथिंग एज इट इज। सिर्फ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व किया, बाहर tan x था, टू tan x था, तो 2 tan x अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 tan x इंटू sec x, 2 tan x इंटू tan x इज tan स्क्वायर x, 2 tan स्क्वायर x। इस sec 1 को मैंने sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x किया, ये मैं लर्न करके नहीं आया। ये जो 4 ऑप्शंस मैंने देखे, 4 ऑप्शंस में sec x एंड sec x प्लस tan x है, log ऑफ sec x भी है, log ऑफ sec x प्लस tan x भी है। मीन्स यहाँ पर tan और sec का इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये बस उसका लॉजिक है। सोचना स्टार्ट करो, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा। हर एंगल से सोचने का ट्राई करो। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 250 MCQs करो, अच्छे करो, पूरा नोट डाउन करो, पूरा कॉपी करो, रिपीट एक बार करो। इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा यू डेफिनेटली क्रैक दैट MCQs। ओके, ये sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये प्लस 2 sec x into tan x, it is a complete square, a plus b whole square, sec square plus 2 sec x into tan x plus tan square, square root cancel, sec x plus tan x, integration of sec x, log of sec x plus tan x, integration of tan x, log of sec x, प्लस साइन है तो ऐड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, sec x इंटू sec x प्लस tan x। एक्चुअल क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। क्या क्वेश्चन था वहाँ पर,
1 + 2 tan x इंटू अंडर सेक एक्स प्लस tan, ऐसा MCQ ऐसा क्वेश्चन टोटल टेक्स्ट बुक में कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। डिफरेंट लेवल के एग्जाम्पल है। दिस इज कंप्लीशन ऑफ 13 and 14। नाउ विल स्टार्ट 15 and 16। 15 and 16 इज वेरी सिंपल टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन है। सो MCQ नंबर 15 and 16। देखो 15 16 क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन x माइनस अल्फा है, नोमिनेटर में सिर्फ साइन x है। सो माइनस अल्फा प्लस अल्फा करो यहाँ पर, रेगुलर एडजस्टमेंट। डिनोमिनेटर का एंगल ऊपर एडजस्ट करना है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय साइन x माइनस अल्फा। अगर आप सेपरेट डिवाइड करेंगे दैट इज बेटर। साइन x माइनस अल्फा, साइन x माइनस अल्फा, साइन x माइनस अल्फा, दिस इज सेपरेट डिवाइड। एक कट cos alpha constant term taking outside 1 dx, sin alpha constant outside, cos alpha x minus alpha divided by sin x minus alpha is cot x minus alpha। 1 का इंटीग्रेशन x cos alpha into x plus sin alpha, cot का इंटीग्रेशन log of sin x minus alpha। ये उसका आंसर। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन ऑफ व्हाट 15 इज व्हाट, साइन अल्फा कॉस अल्फा एक्स, कॉस अल्फा एक्स ए ऑप्शन, प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। सो ये ऑप्शन है, ये 15 का ऑप्शन नंबर ए। और 16 भी उसी टेक्निक का है। dx न्यूमरेटर में है, साइन x माइनस अल्फा एंड साइन x प्लस बीटा, बी है, ये बी है। वेन साइन एंड साइन इन द डिनोमिनेटर, दोनों भी साइन टर्म है, दोनों भी कॉस टर्म है। अगर दोनों साइन दोनों कॉस है, सो दैट टाइम वी हैव टू डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय साइन b माइनस ए, साइन b माइनस ए ऑन बोथ साइड, साइन b माइनस ए। अगर एक टर्म साइन है दूसरी कॉस है, पहली कॉस है दूसरी साइन है, दैट टाइम वी हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस a माइनस b और कॉस b माइनस ए टू बी सेम, डिवाइडेड बाय सेम। साइन x माइनस अल्फा, साइन x प्लस b, अल्फा ने ये है। सो हर चीज, हर वर्ड मेरा कैच करो, हर वर्ड में मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन टर्म है और दोनों कॉस टर्म है, सो दैट टाइम वी हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन a माइनस बी और साइन b माइनस ए, बोथ सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक टर्म साइन है दूसरी टर्म कॉस है, पहली टर्म कॉस है दूसरी टर्म साइन है, दैट टाइम वी हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस a माइनस बी। देखो इस b माइनस ए को ऐसे रखने देंगे, b माइनस ए प्लस एक्स करेंगे, माइनस एक्स करेंगे। ये b माइनस ए एज इट इज है, यहाँ पर प्लस एक्स किया माइनस एक्स किया। 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक, साइन x प्लस b माइनस साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए इंटू साइन x प्लस बी dx। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन a कॉस b, सिर्फ c लिखता हूँ मैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, डिवाइड सेपरेटली
साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ये टर्म कैरी है, ये टर्म कैंसल, यहाँ पर ये टर्म कैंसल, सी अपॉन एस कॉस कॉट कॉट हो जाएंगे, कॉट एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए है यहाँ पर एक्स प्लस ए, सो इट इज कॉट एक्स प्लस ए, साइन अपॉन ये नहीं कैंसल, ये कैंसल है, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस बी, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, लॉग ऑफ साइन, एंगल एक का एक्स प्लस ए दूसरे एक्स प्लस बी है प्लस सी, ये उसका सॉल्यूशन। देखो क्या है, कोसेक बी माइनस ए, लॉग ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। देखो चेक करो, ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा, ये होगा 16 MCQ का आंसर, ऑप्शन बी। सो दोनों MCQ सिमिलर टाइप के हैं। Now let's see the MCQ number 17, 18, 19 and 20. 17, 18 back to back लेंगे। This is MCQ number 17। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, tan क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, बहुत ही सिंपल सिंगल लाइन सोल्यूशन। tan का ड्यू टू सेक्स स्क्वायर एक्स है, ये आइडेंटिटी है, सॉरी ये एक रिजल्ट है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आता है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो यहाँ पर 3 है तो 4 बन जाएगा, tan रेस टू 4x बाय 4 प्लस सी, ये रिजल्ट है, ये दिस एक्चुअली कोरोलरी ऑफ द थ्योरम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम है, उसकी एक कोरोलरी है, आई थिंक फर्स्ट ही कोरोलरी है, तो उसका इससे सॉरी ये tan x का सेक्स स्क्वायर एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है, ये पावर एन है, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, 17 completed. What about 18? Sin raised to mx divided by cos raised to m minus 2x m plus 2x, sin raised to mx divided by cos raised to mx into 1 upon cos square x, प्लस 2 था, बेस स्प्लिट किया, साइन बाय कॉस tan रेस टू mx, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, ये और ये सेम एग्जांपल, आंसर क्या बन जाएगा, tan रेस टू m प्लस एन डिवाइडेड बाय m प्लस एन, m प्लस 1 प्लस सी। सो ऑप्शन ऑफ 18 इज व्हाट, ए। इसका भी क्या था, 17 का भी ये था। ओके, नाउ 19 एंड 20। 19 is challenging MCQs, very much challenging, common नहीं है। sin cube x into cos x dx, जितने भी आप MCQ देखेंगे इतने, हर MCQ इंपॉर्टेंट, हर एक MCQ देखो। अब देखो 19 और 20 में क्या है, 19 में जो भी हमें करना है ऑप्शन को देख के ही करना है। ऑप्शन में क्या है, 2 रूट tan x, ये 2 रूट tan x इंटीग्रेशन कब आएगा, अगर डिनोमिनेटर में tan x और न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर x है, डिनोमिनेटर में रूट tan x और न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर x, दैट विल बी द आंसर 2 रूट tan x। सो ऊपर सेक्स स्क्वायर x लाना, ये हमारा लॉजिक है। सो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर रूट में जाने के बाद cos रेस टू 4 बनता है।
सेक स्क्वायर एक्स, एक कॉस गया, साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब टैन क्यूब, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर जाने के बाद कॉस रेस टू 4 होता है, कॉस रेस टू 4x बाहर आने के बाद कॉस स्क्वायर होता है, अंदर जाने के बाद कॉस रेस टू 4x, बाहर आने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पर tan x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, tan raised to 3 by 2 dx dx, so it becomes t raised to 3 by 2 dt। मैंने ये पुट किया tan x is equal to t, because derivative of tan x is sec square x, so t raised to 3 by 2 बन जाएगा t raised to minus 3 by 2 dt। इसका आंसर minus 3 by 2 t raised to plus 1 हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन निकालना है हमें, t रेस टू माइनस 3 by 2 प्लस 1 माइनस 1 by 2 अपॉन माइनस 1 by 2, ये माइनस 1 by 2 ऊपर माइनस 2 हो जाएगा, नीचे रूट हो जाएगा, रूट t tan x रेस टू 3 by 2 प्लस c। ये देखो, ये आंसर हो सकता है। t is what? tan x, t is what? tan x, so ये इसका आंसर माइनस 2 अपॉन रूट tan x प्लस c, सो सी ऑप्शन। सिर्फ t रेस टू माइनस 3 by 2 का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? t रेस टू माइनस 3 by 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 by 2 प्लस 1, माइनस 3 by 2 प्लस 1 माइनस 1 by 2, ऊपर माइनस 1 by 2, नीचे माइनस 1 by 2, डिनोमिनेटर में माइनस 1 by 2 इज माइनस 2, और ये माइनस 1 by 2 नीचे रूट t हो जाएगा, रूट t इज व्हाट? tan x, ये उसका आंसर। दिस इज 19। नाउ फाइनली 20 क्या है? u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको अपॉन v स्क्वायर करेंगे, एक्चुअल v क्यूब था तो v का क्यूब को स्प्लिट किया मैंने, v स्क्वायर v क्यूब को स्प्लिट किया, v स्क्वायर एंड v, एंड दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, ये f ऑफ x, ये f डैश ऑफ x, इट्स u बाय v रूल, डेरिवेटिव का रूल है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, इट्स मीन्स इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ u बाय v, ये f ऑफ x, ये f डैश ऑफ x, ये f ऑफ x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? u बाय v का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इट मीन्स u स्क्वायर अपॉन 2v स्क्वायर प्लस c। सो ये अपॉन 2 कहाँ से आया? प्लस 1 किया, 1 प्लस 1 इज 2, सो एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, अपॉन एन प्लस 1 इज व्हाट? 1 प्लस 1 इज 2। सो ये भी JEE लेवल का एग्जाम्पल है, ये भी JEE लेवल का एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ कॉमन, ऐसे MCQ आपको कहीं पर भी नहीं दिखेंगे, ये बहुत ही रिच स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इट्स नॉट अक्रॉस फ्रॉम ऑल डिफरेंट बुक्स ऑफ वराइटीज ऑफ बुक्स ऑफ MST CET, एंड सम MCQs अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% MCQs इसमें JEE लेवल के हैं। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग एग्जाम्पल। अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए तो आप PDF डिस्क्रिप्शन, ये YouTube चैनल पे मेरा जो ये है, YouTube चैनल का नाम मैथ मेंटर, उसमें जो ये जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही क्लिक करो, वहाँ पर आपको इस PDF की वर्कशीट की PDF आपको मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करो, सॉल्व करो और ट्राई करो। सो स्टे ट्यून ऑन दिस YouTube चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर करो और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज सफिशिएंट 20 MCQs. So we'll start next on the next day from the MCQ number 21st to 40. Okay, so thank you very much.